Hello friends, welcome back to Notes Culture. So in this lecture, we will be discussing on GIS and its application along with the history of space remote sensing and history of different जो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे एंड जो रिमोट सेंसिंग हम अभी तक स्टडी कर लिए उसका एप्लीकेशन फील्ड में कैसे हो रहा है इन द फॉरेस्ट्री सेक्टर, इन जियोलॉजी, इन एग्रीकल्चर एंड डिफरेंट ओशन मॉनिटरिंग एंड योर रूरल डेवलपमेंट, डिफरेंट स्कीम्स जो भी एसोसिएटेड है योर रिमोट सेंसिंग से, ठीक है। एंड डिफरेंट क्वेश्चन जो भी स्टेट एसएफ एग्जाम में, डिफरेंट स्टेट एसएफ एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है इन द पार्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग, उसको भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो हम ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं इस सारे चीज़ों को, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ पीएससी में मोस्टली दिस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो हमें ब्रीफली इसको हम स्टडी कर लेंगे, इतना डिटेल्स नहीं इसको नहीं हम स्टडी करेंगे, बस ब्रीफली जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज द GIS. So this GIS stand for Geographic Information System. So actually this GIS is a computer based application system. It is a kind of software that helps in is analyzing. तो फर्स्ट हम डाटा तो कलेक्शन कर रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में हम सैटेलाइट के थ्रू, डिफरेंट एयरक्राफ्ट के थ्रू हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं एंड दिस डाटा इज एनालाइज्ड एंड दिस डाटा इज डेवलप्ड इनटू डिफरेंट मॉडल्स थ्रू द हेल्प ऑफ योर GIS सॉफ्टवेयर। सो दिस GIS स्टैंड फॉर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. So here the geographic related with your different location specific data. As you know, this data is associated with your different coordinates, or coordinates means this latitude and longitude. Latitude means the imaginary horizontal lines are known as latitude, and longitude means the imaginary vertical lines is known as longitude. So this data is mostly associated with this coordinates. So यहाँ पे हम फोटोग्राफ के जो फोटो हम एरियल फोटो क्लिक कर रहे हैं उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स पता चलता है। तो डिफरेंट डाटा हम कलेक्ट करते हैं थ्रू GIS. वन इज द रास्टर डाटा एंड सेकंड इज द वेक्टर डाटा. सो फॉर दिस कलेक्शन ऑफ रास्टर डाटा, सो देयर आर टू काइंड ऑफ डाटा, द raster data. So for collection of raster data we are using remote sensing, using the different satellites, different sensors. So this remote sensing provides this information regarding most of these physical features, its chemical features of different objects, physical, chemical, biological property of different objects we can estimate through the help of remote sensing, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको different your color composites, how this visual image are interpreted, how this different color composites are there, different tonal variation, your tonal contrast. So all these parts I already discussed in previous lecture. And for the collection of vector data, so there are two kind of data. For the collection of vector data, there are mostly two method are followed, like your ground survey. तो हम ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, लाइक योर थियोडोलाइट, योर डिफरेंट ट्रांजिट्स हम वहाँ पे करते हैं, तो उसके थ्रू हमें ग्राउंड सर्वे करके हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ लीडर स्टैंड्स फॉर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लीडर. So through the help of LiDAR, we are using most your low altitude aircrafts. So with the help of aircraft, we are attaching different GPS devices, so that it collects this location specific data. Because in GPS we are mostly collected your location, हमें लोकेशन का पता चलता है थ्रू द हेल्प ऑफ GPS. सो हम क्या करते हैं ना, द एयरक्राफ्ट जो कि आपको मैं बताया था, डिफरेंट प्लेटफॉर्म वी आर यूजिंग दिस एयरक्राफ्ट and this GPS is fitted to this, and this data is collected through this method. So this is a vector method of data collection. So there are two methods, the raster data and your vector data. So this vector data collection is a new technique. Mostly recently mostly your different aircraft, small aircrafts are used for collection of your vector data. And one thing is there, जो ऑब्जेक्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग. सो रोजर टॉमिल्सन, याद रखिए, रोजर टॉमिल्सन इज नोन एज फादर ऑफ GIS. सो इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होता है फॉर एनालाइजिंग दिस डाटा. जो भी डाटा हम अर्थ सैटेलाइट के थ्रू हम अर्थ से कलेक्ट कर रहे हैं, सो मोस्ट ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर यूज, लाइक योर आर्क व्यू, आर्क GIS, मैप इन्फो. सो आप याद रखिए कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है. So first this data are collected from this earth surface, and this data are analyzed through this computer system through the usual different software. By the help of different software, this data are analyzed. So you can see this is a photograph, मतलब सैटेलाइट में जो फोटो लिया जाता है
एक प्लेस का फोटो लिया गया है, इट इज़ ए सिटी एंड इस सिटी में एक रोड पास हुआ है, यहाँ पे कुछ ह्यूमन रेसिडेंस भी है, ट्रीज भी प्रेजेंट है एंड यहाँ पे कुछ सम बिल्डिंग्स है। सो दिस GIS क्या करता है ना, ये डिफरेंट मॉडल्स यहाँ पे डेवलप कर रहा है। यू कैन सी दिस इज लैंड यूज मॉडल, योर डिफरेंट स्ट्रीट मॉडल्स, डिफरेंट कस्टम। सो सिंगल पिक्चर से ये डिफरेंट मॉडल्स डेवलप करता है एंड डिफरेंट डाटाज आर प्रेजेंटेड इन टेबल्स, इन ग्राफ्स एंड डिफरेंट एनिमेशन एंड डिफरेंट वर्चुअल लैंडस्केप के थ्रू ये हमें डाटा को एनालाइज करके डिफरेंट मॉडल्स में इट विल प्रोवाइड टू अस, ठीक है। So usually two kinds of data, this GIS components consist of two data, like your attributed data and your spatial data. So this attributed data including this different features, you can see this information about what can be found at a particular location, this will be represent your attributed data. So you can see is in a single photograph we are observing topography, means ये एक फोटो लिया है जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू या फिर एनी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो फोटोग्राफ लिया गया है। सो इसमें हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। रोड के लिए हम एक सीट बना सकते हैं, देन योर ट्रीज के लिए और एक सीट बना सकते हैं एंड योर बिल्डिंग्स के लिए और एक सीट बना सकते हैं, ठीक है। तो द हेल्प ऑफ GIS योर सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैं आपको बताया था ना, मल्टी डायमेंशनल यूज जो रिमोट सेंसिंग हम कर रहे हैं, दिस रिमोट सेंसिंग हैव मल्टी डायमेंशनल यूज, मल्टी सेक्टरल यूज उसमें पाया जाता है एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर attributed data. So this hydrology, topography, your soils, land cover are comes under your attributed data, and these are the examples some spatial data like your elevation value, climate reading, habitat ranges. So these are comes under your spatial data, ठीक है। So आप इसको याद रखिए, what are the kinds of attributed data and what are the spatial data. And next is the, so this is all about your remote sensing, how remote sensing how about the GIS, how this GIS is plays a major role for this analyzing and developed into different models for of this data. So data, the different data are collected, they are analyzed through this GIS software. Again this software help in developing different models of the data. Then next is the application of different remote sensing technology. तो कौन कौन सा सेक्टर में इस रिमोट सेंसिंग यूज हो रहा है। सो फर्स्ट यू कैन सी दिस एग्रीकल्चर एंड सॉइल, दिस क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्ट। सो जो भी हमें क्रॉप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ हो रहा है, जैसे कि हमें सैटेलाइट के थ्रू पता चल जाता है कि कौन सा एरिया में राइस बेल्ट है, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ आवर ये जो राइस देख रहे हैं ना, ये जो बेल्ट है हमारा ईस्टर्न पार्ट एंड योर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे राइस मोस्टली द राइस कल्टिवेशन यहाँ होता है। ऑल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया स्टेट में भी पाया जाता है एंड बट इन राजस्थान योर वेस्टर्न पार्ट एंड योर नॉर्थ इंडियन स्टेट यहाँ पे व्हीट का कल्टिवेशन किया जाता है, ठीक है। So you can see this is a wheat cultivation zone and this is the rice cultivation zone. So through the help of remote sensing you can analyze this crop production, your which area में कौन से month में कौन सा type of crop grown किया जाता है। So you can monitor through this crop monitoring, identification, inventory of regional change detection, yield forecast, your crop intensification, इसमें cropping pattern, different patterns that are agriculture patterns that are followed in different land, different areas, different agroclimatic zones. So you can study through this remote sensing. And the water resources, you can also detect the surface water, the ground water, and this command area management में इसका यूज होता है। and drought assessment, because suppose अब एक प्लेस में इसका जो सॉइल का कलर चेंज होता है, मतलब होता है, ठीक है। आप सैटेलाइट के थ्रू फोटो ली हैं, सपोज वेस्टर्न एरिया में यहाँ पे आप 2018 में फ़ोटो लिए हैं, इसमें इसका जो कलर आएगा इस सॉइल का, वहाँ पे अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बारिश हुआ है तो उसका जो फोटोग्राफ सैटेलाइट कैप्चर करेगा तो उसका कुछ कलर अलग रहेगा। अगेन 2019 में अगर वहाँ पे ड्रॉट आया है एंड सॉइल का मॉइस्चर अभी अगर वहाँ पे रिड्यूस हुआ है, सो उसका जो फोटो कलर कंट्रास्ट आएगा ना, उसमें जो टोन आपको बताया था, तो दैट विल बी डिफरेंट। सो बाय मॉनिटरिंग दिस थिंग्स यू कैन ऑल्सो डिटेक्ट दिस ड्रॉट असेसमेंट एंड यू ड्रॉट प्रोन एरियाज इन different localities, ठीक है। and also this climate change mitigation in and this climate change assessment also estimated through this remote sensing and in different areas like in geology. so they are, जैसे कि मैं आपको बताया था minerals identification में, so single photo में आप you are using your GIS software, so उसमें आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कलर कम्बिनेशन वहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो आपको पता चलेगा कि इसके वहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ मिनरल है। सो आपको पहले सैटेलाइट के थ्रू इसको ऑब्जर्व करना होता है एंड अगेन आप वहाँ पे फील्ड सर्वे करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वहाँ पे
मिनरल्स है या नहीं। तो इनिशियली अभी जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, तो वहाँ पे अभी जिस रिमोट दे आर यूजिंग दिस रिमोट सेंसिंग फॉर कहाँ पे कौन सा मिनरल्स मतलब ढूंढने के लिए अभी इसको यूज़ कर रहे हैं, दिस रिमोट सेंसिंग। ठीक है, दिस अगेन योर इंजीनियरिंग एंड जियो एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड योर बायो रिसर्च एंड एनवायरमेंट। अभी हम इसको देखेंगे, हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय वन सर्वेक्षण जो हमारा एजेंसी है, वो बाय उसका जो मेथड फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट सैटेलाइट्स दे आर यूजिंग इन रिमोट सेंसिंग, उसको भी हम स्टडी करेंगे। एंड योर मेट्रोलॉजी, अब दिस में अभी जो भी साइक्लोन्स अभी इंडिया में मोस्ट ऑफ दिस टाइम दिस साइक्लोन हिटेड इन डिफरेंट कोस्टल एरियाज लाइक इन ओडिशा, लाइक फनी, योर बुलबुल, दिस फाइलिन। सो डिफरेंट योर साइक्लोन फोरकास्ट करने के लिए हम दे आर यूजिंग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मोस्टली। आवर दोज सैटेलाइट्स दोज आर प्लेस्ड इन योर geostationary orbits. So these satellites will providing this information regarding your meteorological phenomenon, your cyclonic disturbance. ठीक है, so this regional weather prediction, so this short term, long term and medium term weather forecasting के लिए हम इसको यूज़ करते हैं in meteorology field and your rural development. So nowadays there are different scheme. अभी आप अगर GS में स्टडी किए होंगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम है फसल स्कीम, so this is the related to your agricultural crop forecasting scheme, and another scheme is your CAPE scheme. So CAPE stand for your crop acreage production estimation program. Your CAPE scheme, CAPE means crop acreage प्रोडक्शन एस्टिमेशन स्कीम एंड योर फसल स्कीम। फसल योजना अगर आप सुने होंगे, पढ़े होंगे आपका जीएस पार्ट में। सो दिस फसल स्कीम, सो ऑल दिस स्कीम्स आर बेस्ड ऑन योर रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, एंड रिसेंटली अभी एक न्यू दिल्ली में अभी हमारा एक इंस्टीट्यूट, एक रीजनल सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, नोन आज MNCF. दिस स्टैंड फॉर महालोनबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर। महालोनबिस इज नोन फॉर, ये ग्रेट स्टैटिस्टिशियन है इंडिया का। ठीक है, सो उनके नाम को बेस्ड करके ये एक सेंटर बनाया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, सो ऑल दिस आर बेस्ड ऑन योर रिमोट सेंसिंग। उसके अलावा भी जो भी हमारा रूरल सेक्टर में जो भी डिफरेंट एजेंसी लाइक नाबार्ड, सो एक स्कीम अभी ओपन हुआ है, योर भुवन नाबार्ड पोर्टल। ठीक है, भुवन नाबार्ड पोर्टल। सो इसको एक बार सर्च कर लेना क्योंकि जीएस में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और एग्रीकल्चर भी, भुवन नाबार्ड पोर्टल एंड योर जियो मनरेगा। सो ये जियो मनरेगा इज ऑल्सो ए स्कीम, जियो मनरेगा स्कीम। ठीक है, so all these schemes are monitored through this remote sensing, and this is related to your agriculture and your different climate change studies, disaster management program, your earthquakes, forest fire. So उसको तो ये फॉरेस्ट फायर को तो मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, कैसे डिफरेंट टोनल कंट्रैक्ट्स एंड डिफरेंट हम स्पेक्ट्रल बैंड्स को यूज़ करके कैसे फॉरेस्ट फायर को मॉनिटर कर रहे हैं। वी आर यूजिंग मोडिस सैटेलाइट, मोडिस सेंसर, aqua and terra satellite of NASA, your VIRS सेंसर ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर शेड मार्किंग एंड योर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर फॉरेस्ट कवर मैपिंग। सो यहाँ पे ये रेड कलर का देख रहे हैं, सो क्योंकि दिस ग्रीन कलर इज लुक्स लाइक रेड कलर इन योर FCC। सो हियर इज अ डेल्टाइक मैंग्रोव जोन एंड सैटेलाइट में आप इसको रेड कलर में देख सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो दिस कोरल रीफ्स, एंड हम ये इस चीज़ के बारे में हम फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड जो एनवायरमेंट पार्ट है ना, वहाँ पे स्टडी करेंगे। वाटर कोरल रीफ्स, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड डिफरेंट रीफ्स, डिफरेंट एरिया में कौन कौन सा रीफ पाया जाता है इंडिया में। मैंग्रोव्स, ऑलरेडी मैं इसको बता दिया व्हाट आर मैंग्रोव्स। सो मैंग्रोव कवर, योर ट्री कवर, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट है। सो हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जो भी हमारा इंडिया में जो फॉरेस्ट है उसको असेसमेंट करता है। एवरी 2 ईयर में एक बार ये उनका एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, नोन एज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। सो लाटेस्ट जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 2019 में हुआ था। आज पर दिस इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, दिस इज पब्लिश बाय FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण। इसका हेडक्वार्टर इज एट देहरादून। ठीक है, सो इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? दिस वाज एस्टेब्लिश इन 1981। ठीक है, so this
1981 और 1982 में बहुत सारे इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू फॉरेस्ट डेवलप हुआ था, लाइक योर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन 1982, ऑल्सो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो इन 1982, एंड योर 1987, मतलब 1980 से 87 90 के दौरान बहुत सारे फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटी किया गया था। योर IGNF है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी, जहाँ पे IFS ऑफिसर्स को ट्रेनिंग किया जाता है, उसको भी 1987 में ओपन किया गया था। एंड योर डिफरेंट 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एनफोर्स, ठीक है। सब इसके बारे में थोड़ा हम स्टडी कर लेते हैं। हमारा जो फॉरेस्ट कवर है, सो दिस इन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो इनका जो सैटेलाइट है, दे आर यूजिंग द सैटेलाइट्स फॉर मॉनिटरिंग द फॉरेस्ट कवर एंड योर ट्री कवर, ठीक है। सो इसमें दो चीज़ है। So through the help of satellite, they are estimating this total forest cover and tree cover assessment in India. So first is the forest cover. So ये forest cover मैं already आपको बता दिया था और एक बार बता रहा हूँ। Forest covers means in area, suppose it is a patch of land, यहाँ पे 1 hectare forest होना चाहिए। यहाँ पे जो forest है, there should be 1 hectare of forest tree, मतलब 1 hectare tree area तक यहाँ पे ट्री होना चाहिए, ठीक है। एंड दिस कैनोपी डेंसिटी, ये जो यहाँ पे जो कैनोपी है, ये कैनोपी डेंसिटी शुड नॉट बी लेस देन 10%, सो इट शुड बी मोर देन 10%। इसका जो कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 10%, देन दैट एरिया विल डिक्लेयर एज ए फॉरेस्ट, ठीक है। सो आपका तो लीगल डेफिनेशन है, अगर किसी भी एरिया एनी गवर्नमेंट लॉ या फिर एनी सेंट्रल लॉ के अंडर वो एक एरिया एस्टेब्लिश है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ए फॉरेस्ट एरिया। बट एज फॉर योर सैटेलाइट पॉइंट ऑफ व्यू, ए पैच ऑफ फॉरेस्ट इन विच, ठीक है, more than 1 hectare in area, so area more than 1 hectare with a tree canopy density more than 10% is known as a forest cover. and उसके अलावा जो भी ट्रीज आप देख रहे हैं, रोड साइड में देख रहे हैं, आप जब रोड साइड जा रहे हैं वहाँ पे जो ट्री है, या फिर एग्रो फॉरेस्ट में आप जो ट्रीज प्लांटेशन कर रहे हैं, आप फार्म के साइड में, ठीक है, फार्म लैंड के साइड में, सो दैट विल कम्स अंडर योर ट्री कवर। सो द फॉरेस्ट कवर, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन को अच्छे से एक बार स्टडी करिए। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज अराउंड व्हाट परसेंट, मोस्टली दे आर आस्किंग योर परसेंटेज, नॉट दिस डाटा। सो दिस टोटल फॉरेस्ट कवर इज इन 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर, दिस इज अबाउट 21.67% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 328 मिलियन हेक्टर। सो इसको भी आप याद रखिए, मिलियन हेक्टर। So total geographical area of India 328 million hectare. Out of this, 7,12,000 area is under forest cover, and rest 95,000 square kilometer is under your tree cover. So tree cover में जो area है, it is around 2.89%, and the forest cover में जो area है, it is 21.67%. So total forest cover and tree cover which consists of 24.56%. This is very important. सो अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है टोटल फॉरेस्ट कवर एंड टोटल ट्री कवर कितना है, सो दिस इज द 24.56%। अगर आपको इंडिविजुअली दे आर आस्किंग दिन क्वेश्चन, दिस इज 21.67 एंड दिस इज 2.89, ठीक है। एंड दिस आर द टॉप 5 स्टेट, जो भी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। टॉप इंडिया में जितना भी स्टेट्स है उसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इज इन मध्य प्रदेश, देन Arunachal Pradesh, third is Chhattisgarh. So Chhattisgarh is in third position, Maharashtra and followed by Odisha. And this total forest cover and tree total forest cover and tree cover in Chhattisgarh is around 59,772 square kilometer. This is around 44.21%. So this is also very very important. ठीक है? So this is published by your FSI, Forest Survey of India. ठीक है? It is a part of your MOEF, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, ठीक है। नेक्स्ट इज द हाउ दे आर यूजिंग डिफरेंट सैटेलाइट। सो और एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ये 1987 से, इसका जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 से शुरू हुआ था, लेकिन इनका जो फॉरेस्ट कवर जो असेसमेंट कर रहे हैं ये 1987 से शुरू हुआ था। सो अभी जो उनका रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, दिस इज उनका ये 16th रिपोर्ट है। 2019 में जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, दिस इज 16th रिपोर्ट। एंड इससे पहले क्या होता था ना, गवर्नमेंट जो भी 1981 से पहले फॉर जो 1981 से जो हमारा फाओ है, फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO एंड UNDP, सो इसका फंडिंग से ये चल रहा था, ठीक है। जब ये FSI नहीं हुआ था उसके पहले भी फॉरेस्ट कवर जो असेसमेंट होता था वो टोटल ग्लोबल लेवल में होता था, FAO उसको कंडक्ट कर रहा था। अभी भी वर्ल्ड एक फॉरेस्ट कवर का रिपोर्ट आता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट कवर का एक रिपोर्ट दैट इज पब्लिश बाय योर FAO। सो उससे पहले
FAO डिफरेंट कंट्री का असेसमेंट करता था विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सैटेलाइट्स। देन उसके बाद 1981 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एस्टेब्लिश किए थे 19 इन देहरादून में। उसके बाद से हमारा रेगुलरली फॉरेस्ट कवर मॉनिटरिंग हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सैटेलाइट्स। सो आपको एक चीज़ बताया था ना मैं, दिस स्पेशल रिजोल्यूशन, सो यू कैन सी। सो अभी और एक चीज़ याद रखिए, अभी जो सैटेलाइट हम 2019 में यूज़ किए थे एंड वी आर यूजिंग योर IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एंड वी आर यूजिंग दिस सेंसर ऑफ LISS-33, ठीक है। जिस ऑलरेडी मैं आपको स्पेशल रिजोल्यूशन में इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो LISS इट इज़ ए कैमरा, ठीक है, उसके थ्रू हम उसको फॉरेस्ट को असेसमेंट कर रहे हैं। सो एक चीज़ आप याद कीजिए, दिस स्पेशल रिजोल्यूशन जितना कम होगा उतना ही हमें ऑब्जेक्ट जूम में उतना ही क्लोज दिखेगा। यू कैन सी हियर द स्पेशल रिजोल्यूशन इज 23.5 मीटर, ठीक है। सो विल गो थ्रू दिस सैटेलाइट, 1 मिनट। यू कैन सी दिस LISS सेंसर, लीनियर इमेज सेल्फ स्कैनिंग कैमरा एंड सेंसर्स। सो यहाँ पे आप देखिए LISS-3। सो इसमें जितना ये आपका स्पेशल रिजोल्यूशन काम होगा इतना हमें ग्राउंड क्लियरिटी, जो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट जो भी प्रेजेंट है उसको हम इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। सो दिस इन FSI यूजिंग योर 23.5 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। जो सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं उसका रिजोल्यूशन है 23.5, बट 1987 में जो यूज़ कर रहे थे इट इज़ 80 मीटर। सो धीरे धीरे इनका स्पेशल रिजोल्यूशन कम होता जा रहा है, ठीक है। तो जितना हमें स्पेशल रिजोल्यूशन हम सैटेलाइट का कम रखेंगे वी कैन डिटेक्ट योर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ सरफेस। एंड इसका जो स्केल है 1:50,000 स्केल, मीन्स इट इज़ ए स्मॉल स्केल फोटोग्राफी। ऑलरेडी मैं आपको और एक बार चेक कर लेते हैं व्हाट इज ए स्मॉल स्केल फोटोग्राफी एंड लार्ज स्केल फोटोग्राफी। So this is your scale. 1 minute. So this is your scale. 1:50,000. 1:50,000 is comes under your small scale photography. 1:40,000 से 1:70,000 के अंदर जो भी स्केल जाएगा this is comes under your small scale photography. So FSI is using your small scale photography with a spatial resolution of 23.5 मीटर, ठीक है। So उसके थ्रू हम डिफरेंट फॉरेस्ट का जो भी स्मॉलेस्ट फीचर है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं with the help of satellite. And which satellite you are using now? This 2019 we are using, because every year they are changing these satellites, their sensors. You can see the initial period mein they are using Landsat MSS, your multi-spectral scanners they are using, and your TM means thematic mappers. So then 1989 में they are using your TM means thematic mappers. एंड धीरे धीरे जब IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का डेवलप हुआ 1988 में, उसको हम स्टडी करेंगे। तो दे आर यूजिंग ऑल्सो योर IRS सीरीज एंड दिस डाटाज आर कलेक्टेड इन डिजिटली फॉर्म। दिस सैटेलाइट कैप्चर दिस डाटा एंड सेंड इट टू इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू योर डिफरेंट ग्राउंड स्टेशंस। सो इन दिस वे दिस डाटा आर मॉनिटर एंड योर फॉरेस्ट असेसमेंट, फॉरेस्ट कवरेज असेसमेंट इसका होता है डिफरेंट ईयर्स में, ठीक है। 2 ईयर में एक बार, ठीक है, बाई एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होता है। सो आप इसको याद रखिए कब हुआ था, FSI का लोकेशन कहाँ पे है। सो ये वाला क्वेश्चन आपको, ये स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं पूछेंगे आपको ऑब्जेक्टिव में। देहरादून में इसका लोकेशन है, कब हुआ था, अभी उनका जो रिपोर्ट है ये कितना नंबर ऑफ रिपोर्ट है, 16 रिपोर्ट, एंड अभी फॉरेस्ट कवर कितना है स्टेट वाइज आप इसको याद रख सकते हैं कौन कौन सा स्टेट में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। देन ऑल्सो यूर मॉनिटरिंग ऑफ ग्लेशियर मॉनिटरिंग के लिए इसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है। So this is a lots of things we are analyzing in through the help of satellites and वेस्टलैंड मॉनिटरिंग। सो इंडिया में बहुत सारे जो वेस्टलैंड है सो उसको भी मॉनिटरिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी हमारा जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, जो UNCCD यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। सो अभी जो हमारा टारगेट है 26 हेक्टर जो हमारा डिग्रेडेड लैंड है उसको हम कैसे फॉरेस्ट एरिया के थ्रू या फिर ट्री प्लांटेशन के थ्रू उसको हम कैसे रिकवर करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा UNCCD का टारगेट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, आपको ये बताया था मैं, ग्रीन इंडिया मिशन। दिस ग्रीन इंडिया मिशन इज लॉन्च इन जो 2010 में लॉन्च हुआ था। योर डिफरेंट एक्शन प्लान्स आर ऑल्सो आर देयर, ठीक है। तो हमारा जो डिफरेंट डिग्रेडेड लैंड को रिक्लामेशन करना है, दिस 26 हेक्टर ऑफ लैंड्स को, मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड को हमें इम्प्रूव करना है थोड़ा ट्री प्लांटेशन, ठीक है, जो हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन में जो हमारा टारगेट है। एंड दिस इज सम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है। सो इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो भी शुरू हुआ था 1972 में,
तो हमारा स्पेस कमीशन दैट आर कम्स अंडर योर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। सो 1972 में ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1972 में योर स्पेस कमीशन। उसके बाद डिफरेंट फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी। सो अगर आप ये परमाणु मूवी देखे हैं ना, जो पोखरण में टेस्टिंग हुआ था, वहाँ पे भी कुछ आपको इसके रिमोट सेंसिंग के बारे में पता चल जाएगा, कैसे यूएसए हमें मॉनिटर कर रहा था विद द हेल्प ऑफ देयर सैटेलाइट। सो इसरो का जो साइंटिस्ट थे वो कैसे उनका जो वो जो था ना, दिस इज जो टेम्परल रिजोल्यूशन, वो कब सैटेलाइट आके अगेन वहाँ पे पोखरण में फोटो क्लिक करेगा। सो दिस इज योर टेम्परल रिजोल्यूशन। आप एक चीज़ याद रखिए, टेम्परल रिजोल्यूशन जो मैं बताया था ना आपको, तो दिस इज रिलेटेड टू दैट थिंग। सब उसका रोटेशन पीरियड को अगर आप कैलकुलेट कर देंगे, कब अगेन वो आके अगेन राजस्थान में वो पोखरण रेंज का फोटो लेगा, तो उसको अगर एस्टिमेट कर देते हैं तो उसी हिसाब से हम वहाँ पे वो जो ऑपरेशन कर रहे थे टेस्ट के लिए, जो भी इनिशियली पीरियड में उनको टाइम लग रहा था, ठीक है। सो दिस रिजोल्यूशन इज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल देयर, ठीक है। सो उसके बाद हमारा फास्ट सैटेलाइट जो इंडिया का था, दिस इज आर्यभट्टा 1 दैट वाज लॉन्च इन 1975 बाय रशियन रॉकेट। तो उस टाइम हमारे पास रॉकेट नहीं था, बट नाउ डेज वी हैव PSLV योर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, योर GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। सो अभी इसको GSLV Mark 3 को हम बोलते हैं बाहुबली लॉन्चर्स। वी हैव डिफरेंट लॉन्चर्स आर देयर नाउ डेज, PSLV GSLV Mark 3, ठीक है। सो ना, बट उस टाइम में हमारे पास सैटेलाइट तो डेवलप किए थे, बट उस टाइम हमें लॉन्च व्हीकल नहीं था, ठीक है। जो लॉन्च करते हैं ना, जो सैटेलाइट जो आप इसरो में देखे होंगे, इसरो का जब किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है, सो दिस इज योर लॉन्च व्हीकल्स आर देयर, दिस काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो उस टाइम हम रशियन रॉकेट का हेल्प लिए थे फॉर लॉन्चिंग और आर्यभट्टा सैटेलाइट। देन उसके बाद भास्कर 1 एंड भास्कर 2 दैट वाज लॉन्च इन 1979 टू 1981 में, दोनों को लॉन्च किया गया था। एंड उसके बाद इसरो हमारा डिफरेंट जो भी हमारा IRS सीरीज जो शुरू हुआ था इंडिया में, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1 है, दैट वाज लॉन्च इन 17 मार्च 1988। इसको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि दिस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, IRS का कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। एंड आर्यभट्टा इज योर फास्ट सैटेलाइट एंड इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वाज लॉन्च इन 1988। देन IRS 1B मीन्स देयर अपग्रेडेड वर्सन, जैसे कि फ़ोन में जैसे कि आप अपग्रेड करते हैं ना फ़ोन को, वैसे ही ये अपग्रेडेड वर्सन है, ठीक है। योर IRS 1B 1991 में अगेन दिस वाज लॉन्च। एंड IRS 1C, सो IRS 1C को हम एक रशियन रॉकेट के साथ सेंड किए थे। एंड उसके सो 90 के बाद एंड ड्यूरिंग द एरा ऑफ 2000, सो वी हैव मोस्ट सैटेलाइट्स दे वी आर डेवलपिंग very new satellite program. Recently we are launching our Chandrayaan program, your Mars ठीक है, मार्स ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हम मार्स को सेंड किए हैं 2014 में। अभी हमारा जो एम है गगनयान मिशन, तो हमें ह्यूमंस को भी सेंड करना है स्पेस में। एंड योर आदित्य मिशन फॉर द सन, वहाँ तक हम जाके फ़ोटो क्लिक करना है वहाँ का, एंड डाटा एनालिसिस करना है वहाँ का सन का। सो देयर आर लॉट्स ऑफ मिशंस आर देयर। एंड उसके अलावा हमारा जो डिफरेंट सैटेलाइट्स है उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। योर IRS सीरीज, दिस IRS सीरीज इज़ यूज फॉर योर अर्थ साइंस। सो अर्थ में जो भी स्टडी करना होता है उसके लिए हम योर IRS सीरीज को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम रिमोट सेंसिंग, जो अभी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, दे आर यूजिंग दिस IRS सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग फॉरेस्ट कवर। एंड उसके अलावा रिसोर्स सेट, so we are using this resource set for same this earth science. And your megatropics, this is for your communication. Your GSAT series is also for communication. And for your Jugnu satellite is there, this is for communication. So these are used by our armed forces. Some satellites are used by your armed forces, क्योंकि वहाँ का जो मॉनिटर करना होता है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। क्योंकि आप अभी जो इशू हुआ था चाइना के साथ डोकलाम रेंज में, सो वहाँ पे जो चाइना वहाँ पे उसका जो आर्म फोर्स को सेंड किया था वहाँ पे, तो हम सैटेलाइट के हेल्प से हमें पता चल गया कि चाइना का आर्मी यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिफरेंट हमारा जो वेपन वहाँ पे सेंड किए। सो दिस हेल्प्स इन हमारा जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में दिस रिमोट सेंसिंग प्लेज एन क्रूशियल रोल फॉर मॉनिटरिंग ऑल दिस एक्टिविटीज़, ठीक है। एंड योर बालाकोट एयर स्ट्राइक में हम जो यूज़ किए थे मिरेज, सो वहाँ पे भी दिस रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे दिस रिमोट सेंसिंग प्लेज अ मेजर रोल इन मॉनिटरिंग ऑल दिस थिंग्स। उसके अलावा भी इंडिया का इनसैट सैटेलाइट, योर इनसैट 2D, ठीक है। सो
इसमें एक दो चीज़ याद रखिए, यो डिफरेंट रिसर्च जो भी सेंटर है लाइक रिमोट सेंसिंग, लाइक IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, IIRS. सो इसको नोट डाउन कर लीजिए. दिस IIRS इज लोकेटेड एट देहरादून. देन योर SAC स्टैंड फॉर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर. दिस इज लोकेटेड एट अहमदाबाद, गुजरात में लोकेटेड है. एंड वन इज योर NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRSC. सो दिस इज लोकेटेड एट हैदराबाद. एंड उसके अलावा भी डिफरेंट रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, उसको याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है. बस आप ये 3 सेंटर को याद रखें. एंड ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम. दिस इज इंडिया, ये इंडिया का ओन GPS है. हम जो फ़ोन में जो यूज़ कर रहे हैं ना गूगल का, सो दिस इज़ नॉट, ये इंडिया का नहीं है. इट इज़, ये अमेरिका बेस्ड, गूगल अमेरिका का है. तो जो GPS यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ अमेरिका का ये GPS है. तो इसका ये जो डेवलप हुआ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसका एक हिस्ट्री है. जब कारगिल का वार हुआ था 1999 में, ठीक है, तो इंडिया अमेरिका से USA को मतलब रिक्वेस्ट किया था कि हमें कुछ मतलब जो वहाँ पे जो पाकिस्तान सेक्टर से अटैक हो रहा था उसको मॉनिटर करने के लिए, मतलब कहाँ वो उनका जो आर्म फोर्स प्रेजेंट है, सो उनको हेल्प करने के लिए USA को इंडिया का जो भी गवर्नमेंट था उस टाइम, तो दे आर आस्किंग हमें लोकेशन चाहिए उनका, कहाँ पे वो पाकिस्तान का आर्मी प्रेजेंट है. बट USA उस टाइम मना कर दिया था, आई विल नॉट हेल्प यू, बिकॉज उस टाइम जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना, उसके वजह से USA बहुत गुस्सा था इंडिया के ऊपर में. सो फ्रॉम दैट थिंग दिस इंडिया उसके बाद ही ये प्रोग्राम का ये जो सैटेलाइट इंडिया का ओन GPS सिस्टम डेवलप किया. क्योंकि आप किसी को हेल्प मांग रहे हैं तो अब हेल्प नहीं कर रहा है, तो उसके वजह से इंडिया एक योर गगन स्कीम को लॉन्च किया, एक गगन प्रोग्राम लॉन्च किया था. दिस गगन प्रोग्राम, दिस इज योर जॉइंट प्रोग्राम्स ऑफ योर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड ISRO. सो ISRO एंड योर सिविल एविएशन, योर जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह का जो मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन, सो ये दोनों मिलके एक गगन प्रोग्राम लॉन्च किए, गगन प्रोग्राम. एंड ये गगन प्रोग्राम का जो भी नेक्स्ट वर्सन था, सो ये गगन प्रोग्राम का अपडेटेड वर्सन है ये IRNSS. ठीक है. सो गगन प्रोग्राम के थ्रू ये IRNS जो दिस ओन GPS जो डेवलप हुआ इंडिया का, उसके बाद ही ये सिस्टम डेवलप हुआ था. ठीक है. एंड दिस IRNSS इज ऑल्सो नोन एज नाभिक, NAVIC. सो अगर नाभिक के बारे में भी क्वेश्चन आता है तो दिस इज सिमिलर टू योर इंडियाज ओन GPS. एंड इसमें जो सैटेलाइट्स, टोटल 7 सैटेलाइट का इसका रिक्वायरमेंट था टू डेवलप आवर ओन GPS, बिकॉज ये टोटल इंडिया को कवर करेगा. ऑल्सो इंडिया के साथ ये जो एरिया देख रहे हैं ना, इट कैन कवर दिस सम पार्ट्स ऑफ चाइना, कम्प्लीटली पाकिस्तान, योर टोटल योर इंडियन ओशन, योर अरब सागर एंड योर बे ऑफ बंगाल एलोंग विथ योर साउथ ईस्ट एशिया. टोटल ये इतना एरिया को ये कवर कर सकता है योर ओन GPS. सो अभी 2021 से ये एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है. सो न्यू जो फ़ोन आप यूज़ करेंगे उसमें ये जो ये नाभिक सिस्टम भी आपके फ़ोन में पा सकते हैं. सो GPS अभी इंडिया का जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दे आर यूजिंग दिस, इसको यूज़ करेंगे वहाँ पे. ठीक है. सो इसके लिए टोटल 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है. सो फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था दैट इज लॉन्च इन 2013. यू कैन सी देयर आर 7 सैटेलाइट, दिस 3 4 5 6 7. सो ये जो 7 सैटेलाइट्स है, सो out of the 7 satellite, 3 satellites are placed in your geostationary orbit. So इसमें 3 satellite they are placed on your geostationary orbit, means your equator का equator से synchronize है. and next 4 satellites are geosynchronous satellites. So ये ऐसे rotate करेंगे and 3 satellites will rotate like this and 4 satellites will move like this. So there are total 7 satellites. and last जो satellite launch किया गया था, that was our 7 satellite, that is launched in 2018. ठीक है. This is known as IRNSS 1I. दिस वाज आवर लास्ट सैटेलाइट. टोटल 7 सैटेलाइट ऑलरेडी स्पेस में पहुंच गए हैं. ठीक है. सो यहाँ पे एक सैटेलाइट फेल्योर हो गया था. वहाँ पे जब इनिशियल पीरियड में एक सैटेलाइट का फेल्योर हो गया था, वो ऑर्बिट में नहीं पहुँच पाया था. सो टोटल 8 सैटेलाइट हम लॉन्च किए थे. एंड वहाँ उसके लिए 7 सैटेलाइट का रिक्वायरमेंट है, और लास्ट सैटेलाइट स्पेस में पहुँच गया है. दैट इज लॉन्च इन
2018. So this is all about your इंडियाज ओन जीपीएस. ठीक है, तो एग्जाम के लिए दिस क्वेश्चन बिकॉज आ सकता है इंडिया का ओन जीपीएस का नाम क्या है. आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जानना चाहिए क्योंकि आप रिमोट सेंसिंग पढ़ रहे हैं ना, तो आपको सारे चीज़ें का नॉलेज होना चाहिए. सो दिस इज नोन एज योर IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम. ठीक है. सो नेक्स्ट पार्ट इज योर ये डिफरेंट स्टेट SCF एग्जाम का क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन तमिलनाडु SCF एग्जाम में आया था. द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग रिलेबल मेजरमेंट एंड मैप्स फ्रॉम एरियल फोटोग्राफ्स इज नोन एज फोटोग्रामेट्री. स्केल्स यूज फॉर फायर मैप. सो फायर मैप के लिए वी आर यूजिंग 1:50,000 क्योंकि ये स्मॉल स्केल फोटोग्राफी हम यूज़ कर रहे हैं. सो यहाँ पे जो स्पेशल रेजोल्यूशन हम कम मतलब लेस करके हमें डिटेल्स एनालिसिस कर सकते हैं. एंड दिस ओब्लिक फोटोग्राफ में हमारा जो एंगल कितना रहता है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल, लो एंगल है एंड और हाई डिफरेंट. तो इसको मैं ऑलरेडी स्लाइड में बता दिया हूँ एंगल ऑफ फोटोग्राफी. एंड नेक्स्ट इज महाराष्ट्र का SCF एग्जाम में आया था. द फास्ट एरियल फोटोग्राफ वाज ओब्लिक एंड टेकन ऑफ ए फ्रांस विलेज. फ्रांस में फोटोग्राफ लिया गया था. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी, कौन सा सेंचुरी में ये लिया गया था, 1800 1900. तो एक इन्फॉर्मेशन उसका. द एरियल फोटोग्राफी वाज फास्ट प्रैक्टिस बाय द फ्रेंच फोटोग्राफर एंड बैलूनिस्ट दिस गैस्पर्ड ट्रोगन इन द ईयर 1858. मीन्स 18th सेंचुरी में इस फोटोग्राफ को लिया गया था. ठीक है. सो यू कैन सी. सो इसमें एक नाडर एक यूज़ किए थे. नाडर एक इट इज़ ए काइंड ऑफ हॉट एयर बैलूनिंग. ठीक है. इट इज़ काइंड ऑफ हॉट एयर बैलून, मतलब उसके ऊपर से ही ये फोटोग्राफ लिए थे, एरियल फोटोग्राफ, थ्रू द हेल्प ऑफ ए काइंड ऑफ कैमरा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिमोट सेंसिंग, योर GIS, योर GPS and your history and different questions that may become in your exam. So this is all about your today's slide, and this is your end of your lecture of your GIS and GPS and your remote sensing. So next slide से हम स्टडी करेंगे फॉरेस्ट सर्वे एंड इंजीनियरिंग. सो जो भी अभी फॉरेस्ट का जो टेक्निकल टर्म्स है ना, जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको हम पहले स्टडी कर लेंगे. तो लास्ट बचा है हमारा फॉरेस्ट सर्वे एंड इंजीनियरिंग. देन उसके बाद से हम फॉरेस्ट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड योर फॉरेस्ट सक्सेशन, जो भी दैट आर द पार्ट्स ऑफ योर इकोलॉजी. एंड नेक्स्ट हम उसके बाद स्टडी करेंगे इथनोबॉटनी एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे स्लाइड. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.